Welcome to the students of Standard 8. Today we will discuss about the irrigation. So as we know that water plays important role in crop production. So providing water to the crop is known as irrigation. Different crops are having their own requirement of water, as rice requires a lot of water while wheat require incomparatively less water. This requirement of water is also varying at different times of growth, their life cycles, as wheat requires water before plugging, at the time of flowering, and when grains develop. Rice needs water throughout the seasons. So we can say neither less nor excess irrigation is beneficial for crop production. The excess water cause waterlogging and stop the roots from breathing. It causes salinizations of soil, in which some dissolved essential elements are going to evaporate and water in lack of the nutrients. Now we are talking little bit about surface, or we can say the source of irrigation. So traditionally farmers are dependent on rainfall for their irrigation. So the crop require more water are grown in the moderate to high rainfall areas, whereas hardy crops are grown in dry areas. But nowadays scenario has changed with the constructions of dam across the rivers and waters carries by the canals to many areas. In Indira Gandhi Canal is one of the famous canals which carries water in Rajasthan from the Satluj, Ravi and Bias for the cultivation of wheat, cotton, groundnut and fruits in desert areas. This type of canal is known as permanent canal. Some are inundation canals, which is used to divert rainwater from rivers and streams during the monsoon season. So this is the not permanent, this is temporary canals, so known as the inundation canals. Now little bit we are talking about the methods of irrigation. So the distribution of water over crop field is depend upon the availability and the source of water. In the modes of irrigation in which water is allowed to run over the field is called the surface irrigation. In surface irrigation, several systems are, as crops are planted on ridges and water is allowed to run through furrows between the two ridges is called the furrows irrigation. In the crops like rice, which need more water, the field is flooded with water by making bunds all round of the field, known as basin irrigation. So this is second type, that is the basin irrigation. Now drip irrigation. In drip irrigation, it involves to fit the tubes in the pipes which is laid over the land, and small tubes known as emitters
which release water drop by drop around the roots of the plants. So this is known as a drip irrigation, a sprinkler irrigation. In this type of irrigations, sprinkler are fitted to the pipes which supply water, and these sprinklers moves and rotating heads which spray water over the crops. So this is a little bit about the irrigation which we have already discussed here. If you are unable to understand, again I am giving you some tips to you. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को मालूम है। तो ये पानी जो है इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और किसान प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम लोग इरिगेशन करते हैं। गांव में इसे पटौनी के नाम से भी लोग जानते हैं। सो अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं उनका अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट होता है पानी का। सभी तरह के फसलों के लिए एक ही तरह का पानी का सप्लाई ज़रूरी नहीं होता है, और इरिगेशन जो है पटौनी जिसको बोलते हैं, सिंचाई जिसको बोलते हैं, ज़रूरी एक ही तरह का नहीं होता है सभी के लिए। सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि गेहूं की खेती के लिए बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको टाइम टू टाइम होता है। जिस समय की प्लगिंग करते हैं तो प्लगिंग से पहले पानी की ज़रूरत होती है गेहूं के खेतों में। फिर क्या होता है, जिस समय गेहूं के फसल में फूल आने लगते हैं उस समय पानी की ज़रूरत होती है, उस समय सिंचाई किया जाता है। और जब जो है क्रॉप मैच्योर होने लगता है, पकने से पहले मैच्योर होने लगता है, उस समय गेहूं की खेती में सिंचाई यानी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इसके ठीक विपरीत धान की खेती में, राइस में, इसको क्या है कि पूरे सीजन पूरा पानी चाहिए, पूरे सीजन भर, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये अलग अलग तरह का होता है। अब क्या है बात कि ना तो बहुत अधिक पानी की सप्लाई और सिंचाई सभी फसलों को चाहिए, और ना ही कम अगर खेतों में पानी की सिंचाई करेंगे तो फसल पूरी तरह से नहीं ग्रो होंगे और मैच्योर होंगे, सूख जाएंगे। जबकि बहुत ज़्यादा पानी का अगर सप्लाई करेंगे तो वो भी क्रॉप्स के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होता है, और इसी का नाम है सैलिनेशंस ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है कि पानी जो है वो खेतों में लगा रह जाता है बहुत दिनों तक, और इसमें जितने भी मिट्टी में मिले हुए मिनरल्स होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, और इवापोरेशन के द्वारा वो पानी जो है वो वातावरण में मिल जाते हैं और सॉइल में उसकी कमी हो जाती है। इसी को सैलिनेशंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये पानी का जो सप्लाई है ये कहाँ से आएगा, इस पर डिपेंड करता है। इरिगेशन यानी सिंचाई जो है ये कैसे होगा, किस तरह से करते हैं। तो पहले क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट थे खेतों की सिंचाई के लिए। तो लेकिन क्या है कि तब क्या होता था कि जहाँ बहुत मध्यम और अत्यधिक बारिश होती थी वहाँ पर ऐसे फसल उगाए जाते थे जिनको कि बहुत पानी की ज़रूरत है, और ऐसे फसल जिनको कि कम पानी की ज़रूरत है तो जहाँ कम या ड्राई रीजन होते थे वहाँ पर इनको उगाया जाता था। तो उसमें क्या है कि एक तरह का प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी क्या है, साइंटिफिक रीजन के हिसाब से और अभी जो है बदल गया है इसमें। अभी क्या है कि बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं रिवर्स नदी के ऊपर, और उससे कैनाल नालियों की तरह बना करके, जिसके बड़े बड़े नाले के रूप में डिफरेंट एरियाज़ में पानी को उस कैनाल के सहारे पहुंचाया जाता है। इस तरह का एक उदाहरण इंदिरा गांधी कैनाल है, जो कि
इस कैनाल के थ्रू राजस्थान के बहुत सारे डेजर्ट एरियाज़ में सतलुज रावी से पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है और किसानों के लिए गेहूँ, कपास, ग्राउंडनट, बहुत सारे फल के सिंचाई के काम में ये आता है। तो ये जो है इस तरह का कैनाल सिस्टम अब एडॉप्ट कर लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी किस किस तरीके से हम लोग इस पानी का सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहले कि पानी जो है ये क्रॉप फील्ड जो है उसके सतह पर पूरे फील्ड में और खेतों में पानी का जो सरफेस एरिया में पानी को हम लोग सप्लाई करते हैं, इसी को सरफेस इरिगेशन कहते हैं कि पूरे खेतों में पानी समान रूपों से फैल जाए और सभी क्रॉप्स के सभी प्लांट्स तक पानी पहुंच जाए, इसी को सरफेस इरिगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह के नीड के हिसाब से, यानी पौधों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के सिंचाई को किसान जो है वो फॉलो करते हैं। उसमें कुछ है जैसे फॉरो इरिगेशन। फॉरो इरिगेशन में होता है कि क्या होता है कि छोटे छोटे मेज़ दोनों बगल बनाए जाते हैं और मेर के ऊपर जो है क्रॉप्स को लगाए जाते हैं और दो मेरों के बीच नालियाँ, जिसे क्यारियाँ भी बोलते हैं, बनाए जाते हैं और उधर से पानी की सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं फरो इरिगेशंस। दूसरा है जैसे धान की खेती में कि पूरे फील्ड को चारों बगल से और खेतों को चारों बगल से थोड़ा थोड़ा ऊंचा करके क्यारी बना करके बांध देते हैं और पूरे जो खेत हैं उसको पानी से ओवर फ्लडेड, यानी पूरे में पानी हम लोग सप्लाई कर देते हैं, इसको बेसिन इरिगेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था ड्रिप इरिगेशन का। इसमें क्या होता है कि पाइप्स को सतह पे, खेतों के सतह पे थोड़ी थोड़ी दूर पर एक चैनल बना करके पाइप से पानी का सप्लाई होता रहता है और इसमें जहाँ तहाँ छोटे छोटे जेट लगा करके उसमें ट्यूब्स लगा देते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पानी को उस ट्यूब से सप्लाई करता रहता है और ये ट्यूब्स जो है इमीटर्स कहलाता है। तो उसका क्या होता है कि ये धीरे धीरे पानी को जो पेड़ हैं उनके जड़ों तक थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि जहाँ कम पानी है या दूर से पानी की सप्लाई पाइप के द्वारा है, उस क्षेत्रों में इस तरह के ड्रिप इरिगेशन से पानी का क्या होता है कि बचत होता है, अत्यधिक पानी का नुकसान नहीं इसमें होता है। तो ये उस एरिया के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद एक और तरह का है स्प्रिंकलर इरिगेशन। चूँकि क्या देखते हैं हम लोग कि सरफेस इरिगेशन में बहुत सारी खामियां भी हैं जिसके कारण पानी की बर्बादी भी होती है। अब मान लो कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाना है और बीच में किसी दूसरे का खेत है, तो फिर हम लोग उसमें क्यारियां बनाते हैं, कभी वो टूट जाते हैं, पानी स्प्रेड कर जाता है, इस तरह से मिसयूज भी होता है पानी का, कहीं किनारे बह रहा है। तो इसके लिए ये सब तरह का जो है हम लोग अडॉप्ट करते हैं। एक मुख्यतः है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि पाइप से जो है सो स्प्रिंकलर्स फिट कर दिए जाते हैं हेड की तरह, जिसमें से कि झरने की तरह और फव्वारे की तरह उसमें से स्प्रे करके पानी का जो है सो वो टाइम टू टाइम निकलता रहता है और दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी चारों बगल वो हेड्स जो है घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पानी को चारों बगल फेंकते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। तो ये एक तरह से स्प्रिंकलर्स का काम करते हैं और झरने की तरह थोड़ी थोड़ी देरों पर ये पानी को फैलाते रहते हैं पूरे फील्ड में। तो इस तरह से ये स्प्रे कह सकते हो कि टाइम टू टाइम ये स्प्रे करते रहते हैं पूरे खेतों में। तो इस तरह के जो इरिगेशन है, सिंचाई है, उसको हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशंस कहते हैं। तो ये मुख्य तरह के इरिगेशंस हैं। लेट अस